नमस्कार। रियासी ज़िले के अलग अलग हिस्सों से ये जानकारी आ रही है कि अलग अलग इलाकों में वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। आग की घटनाएं पेश आ रही हैं। काफ़ी सारे पहाड़ों में इस समय आग की चपेट में है काफ़ी सारे पहाड़ रियासी ज़िले के। और डीएफओ रियासी जो है वो भी अभी राउंड पे है और उनका स्टाफ भी इस समय कोशिशें ज़रूर कर रहा है कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन ऐसा पर्याप्त रूप से होता हुआ नहीं दिख रहा है। डीएफओ रियासी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज जो ये आग की घटनाएं हैं सबसे ज़्यादा हो रही हैं और लोग भी हमें इस मार्फत अपने अपने इलाकों के जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो भेज रहे हैं। और इनसे वो सवाल भी करेंगे कि आखिर इनका क्या रोड मैप है इन आग की घटनाओं को रोकने के लिए। मैम, स्वागत है आपका। सबसे ज़्यादा आज जो है सबसे ज़्यादा घटनाएं आग की पेश आ रही हैं अलग अलग इलाके में। आप बता रहे थे कि पौनी में भी आपका विज़िट हुआ और बमाग में भी आप गए थे। इस समय हम ज्योतिपुरम में खड़े हैं और मेरे पीछे जो पहाड़ हैं ये भी आग में इस समय झुलस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं कि कहाँ कहाँ पर ये आग की घटनाएं पेश आई? देखिए, देयर आर डिफरेंट स्पॉट्स जहाँ पे फायर हैज़ बीन इरप्टेड. So one of the spot is the Jyotipuram where we are standing here, right? So the main cause of the fire origin is basically the dry spell. We have not received any rains yet, so that is the major cause. Besides that, sometimes people are also responsible because these fires are not the artificial ones. These are not the natural. These are the man-made. So somehow the people are also responsible for it. And we have been putting efforts and we have been to some extent successful also in dousing these fire. My staff is on the alert at every place. My teams are there at different spots and we are already having the fire cells in our division. So those fire cells में we have the staff who is being deputed and 24/7 they are on the heels. आप कह रहे हैं नेचुरल नहीं है ये घटनाएं, मैन मेड हैं, लेकिन कार्रवाई भी होती हुई नहीं दिख रही है। कहाँ पे कमी रह रही है? क्या आप मालूम नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तंत्र नहीं है, निज़ाम नहीं है जिससे ये मालूम किया जा सके कि आखिर कौन बार बार हर साल गर्मियों के मौसम में इन आग की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू add into it, the fires are initially they are the definitely man made only, but then somehow the natural thing also play the role. Like at present the strong winds are blowing, so they are spreading the fire like anything. We douse the fire, we extinguish the fire at one spot, but due to wind somehow it spreads at the other spot also. So we are finding it difficult to control, but still the efforts are on and we have been successful also. Like in Jyotipuram you can see the fire has been controlled to quite an extent. क्या ऐसा भी वक्त आएगा जब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? क्या ऐसा तंत्र निज़ाम पर काम चल रहा है, कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि ये जो हरे भरे जंगल हैं वो बर्बाद होते हैं, जल जाते हैं, जीव जंतु भी मरते हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। क्या किसी इस ऐसे निज़ाम पर काम किया जा रहा है जिसके बाद ये घटनाएं पेश नहीं आएंगी, या फिर आप विफल है पूरी तरह से, जो वन विभाग है ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगी, ये आप कह रहे हैं? देखिए, fires are natural as well as man-made, so we cannot say anybody can put a full stop on it. But yes, we have been taking the preventive measures, like we construct the fire lines also, and that is how we are able to protect the forests of the area. जो हमारा एरिया है, we have been successful in preventing the fires at many spots. This is like first because today why it has aggravated because of the strong winds. This is natural. We cannot do anything regarding the winds. लेकिन इससे पहले भी आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। And we have stopped them. We have controlled them. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आग लगते रहेगी और आप कोशिशें करके बुझाते रहेंगे, लेकिन देखिए, फर्स्ट थिंग preventive measures, I told you that we are taking preventive measures. That is why we have been successful in holding them, in fact, in putting a hold on the incidences. We have been successful, but sometimes, like because this is kind of a natural disaster, and a natural disaster we cannot avert it completely. क्या कानून इतना स्ट्रांग है कि किसी पर एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है अगर ये मालूम चल सके कि किसी ने जंगलों में जानबूझकर अपने फ़ायदे के लिए आग लगाई है? और आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? कोई एक दो बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जिससे कि एक अच्छा संदेश जाए और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके? Definitely there are the legal provisions are there. Like if somebody is caught putting up a fire in the forest area, he is subjected to the 25,000 of a fine as well as the 2 years imprisonment. So definitely we will be taking steps, but the thing is this is like रियासी में ऐसी कोई सजा हुई है अभी तक?
In my time, definitely not, but I'm not very well aware about the past thing, because the main cause is this: it is very hard to track the person, because people come inside in the forest area. If somebody is just passing through, he will just put a cigarette butt, and that catches the fire. In fact, that cigarette butt can be put by ignorance also, and that can be done intentionally also. So this is something, it is very hard to track the person. But yes, where people like, if we are actually catching them red-handedly, so definitely we will take a legal action against them. हर साल प्लांटेशन ड्राइव होती है, हज़ारों पेड़ लगाए जाते हैं और लाखों यहाँ पर जलकर राख हो जाते हैं। क्या जागरूकता आपको लगता है कि अवेयरनेस करने की ज़रूरत है लोगों में? उससे क्या फ़र्क आएगा? लोगों का जो जहन है वो बदला जा सकता है जागरूकता के साथ, उसमें वो करने की कोशिश की जाएगी। Definitely we are conducting the awareness camps also. We have been in touch with the सरपंचेस also. अब इसमें एक लीगल प्रोविजन और है कि जहाँ पे लोगों से, जिस पंचायत से या जहाँ पे लोग इंटेंशनली लगा रहे हैं और दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है किसी भी सिटीजन का, वेदर इट इज मी और यू, whosoever, even if they are not a part of forest department, this is their duty, fundamental duty to protect the environment and come forward for the help. तो ये पहला चीज़ तो ये है कि उनको आना ही चाहिए हेल्प के लिए। लीगल प्रोविजन ये है कि अगर दे आर, जो भी पंचायत है उस पर उनका जो ट्री कंसेशन वगैरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो मिलता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वो लोग अवेल करते हैं, दैट कैन बी विदहेल्ड। इससे पहले यहाँ भी आप कार्यरत थे, क्या वहाँ भी ऐसी घटनाएं पेश आती थी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्पलेस दिख रहा है, बुझाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आग कैसे लग रही है उन घटनाओं पर तह तक नहीं जाया जा रहा और वहाँ उसे रोकने की कोशिश नहीं। Definitely I'll be taking action, because some instances have come into my observation, so proper reporting has to be done. But today there were, at some instances I was being informed by my staff, because they are still in the jungle area, they have not reached back yet. So when they come and report to me, I will definitely take action against them, against the people who are responsible for letting the fire in the forest area. आप क्या सोचते हैं, एक अधिकारी, वन अधिकारी होने के नाते, क्या ऐसा वक्त आएगा कि इन जंगलों में आग नहीं लगेगी, लोग भी जागरूक होंगे और कानून भी अपना काम करेगा? डेफिनेटली कानून भी काम कर रहा है। लोगों का अवेयरनेस कैंप्स हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जो एक, दे हैव दिस नोशन दैट इफ दे विल पुट द फायर इन द फॉरेस्ट एरिया, दे विल गेट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ ग्रास। सो इन दैट केस मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो इस जहन से लगा रहे हैं कि हमें अच्छी घास मिलेगी, मैं उस तरीके से हम लोग जहाँ पे आग लग रही है, वी विल नॉट अलाउ देम टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी टू कट द ग्रास। हम वहाँ पे उनको नहीं लेने देंगे। किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? फायर ब्रिगेड के वाहन भी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम मिली है इससे या मुश्किल हो रहा है? डेफिनेटली फायर ब्रिगेड का हमें बहुत हेल्प मिला है। यहाँ पे जो रोड साइड था वो हम इनकी हेल्प से हम कंट्रोल कर पाए हैं। इवन इन कटरा ऑल्सो वी आर कंट्रोलिंग। वहाँ पे भी हमें पूरा, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, वी हैव गॉट अ गुड असिस्टेंस फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। एक बार फिर जानना चाहूँगा, रियासी जिले में किन किन इलाकों में, पहाड़ों में इस समय आग लगी हुई है, जंगलों में, और कहाँ कहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है और कहाँ कहाँ पर अभी भी आग लगी? देखिए, मेन ये ज्योतिपुरम का है, बकल का है। बकल का भी काफ़ी हद तक, बिकॉज देयर इज़ अनदर रीज़न ऑल्सो कि स्टीप स्लोप्स हैं। एंड इफ यू हैव ऑब्जर्व, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग एट द रोड साइड, बट at daytime if you will look at the mountains, they are very steep. The slope is very steep. It is very tough to go up, climb up. ऊपर जाना बहुत ही tough है, but still my staff has gone there and many a times हम लोगों का, मेरा जो staff है injured भी है. There are many cases जो injuries होती हैं। Staff की कमी भी है क्या आपके विभाग में? स्टाफ को इंजरीज हुई हैं तो कमी डेफिनेटली होगी ही, अगर जिस प्लेस पे अगर उस बंदा आमतौर पर भी क्या कमी रहती है स्टाफ की? इस तरह की घटनाएं रोकने में भी क्या आप महसूस करती हैं कि स्टाफ कम है? वी हैव द स्टाफ, हम लोग फायर वॉचर्स भी रखते हैं, तो उतना ज़्यादा इशू नहीं है स्टाफ का। चलिए, तमाम लोगों को क्या संदेश है जो खासकर ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, लोगों से मेरा यही अपील रहेगा कि फॉरेस्ट को बचाएं और इस इंटेंशन से आग ना लगाएं कि आपको ग्रीन ग्रास मिलेगा, बिकॉज ये दूसरा जो अपने खेतों में भी लगाते हैं उसका ध्यान रखें कि वो फायर स्प्रेड ना हो। आग लगाने से कोई अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता है। इनफैक्ट सॉइल का जो होता है क्वालिटी, आपके जो अर्थवॉर्म्स या कुछ आपके जो लाइफ होती है, बायोटिक लाइफ होती है, वो जो होती है डैमेज हो जाती है। तो इन दैट केस दैट इज़ नॉट गुड।
कि आप आग लगाएं एंड आपके साथ साथ फिर वो फॉरेस्ट में भी फैलती है, इट टेक्स अ वेरी एग्रेवेटेड फॉर्म। चलिए, जहाँ भी आग लगती है शुरुआती समय में अगर कोई आपको जानकारी देना चाहता है तो कैसे आप तक अप्रोच कर? हमारा टोल फ्री नंबर्स भी है, हमारे फायर सेल्स हैं डिफरेंट, एंड बीओस के नंबर्स और वो सब हमने पहले भी पब्लिक अपील भी करी थी थ्रू प्रेस ओनली, एंड द नंबर्स हैव बीन, हम लोगों ने वो भी स्प्रेड किए हैं, नंबर्स भी वी हैव गिवन टू द पीपल सोशल प्लेटफॉर्म पे। या जी, शुक्रिया, थैंक यू। तो नंबर्स जो हैं वो पहले भी एक हमने भी पोस्ट किया था, उस पर भी नंबर जो हैं आपको मिल जाएंगे, और यहाँ भी ये जानकारी मिलती है, वन विभाग तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि शुरुआती समय में ही आग पर काबू पा लिया जाए। और लोगों से भी ये अपील की गई है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें। तो चलिए, फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।